کے ساتھ لڑ سکتی ہیں یا ان کو دور کر سکتی ہیں. تو یہ 2 دن ہمارا جو پروگرام ہے یہ جاری ہوگا. آپ ضرور اس کو جوائن کریں. اگر کسی نے آج مس کر دیا تو وہ کل بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے. کوشچن کریں اور آپ ضرور کانٹیکٹ اس میں ہمارے کنیکشن میں رہیں. زبردست, ویری بیوٹیفل. کیا جس طریقے سے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیا اور شیئر بھی, اور صحیح کہا نبیلہ کہ آج کل کا دور بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ سب سے پہلے یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے وداؤٹ انویسٹمنٹ, اگر آپ کے پاس صرف کنیکشن ہے اور ڈیوائس اتنا چھوٹا کہ ایک موبائل بھی ہو, آپ بہت سیکھ سکتے ہیں, بہت کر سکتے ہیں. اور اب یہی چاہ رہے کہ وی ہیلپ عورتوں کو انلیش, مطلب وہ اپنے مطلب وہ جو گھونسلے میں جو بند ہے وہ اس سے نکلیں گھر میں بیٹھے بیٹھے وداؤٹ نیگلیکٹنگ. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے فیملی کو چھوڑے, بچوں کو چھوڑے یا کچھ, سب کو کلچر اور اپنے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اور چیز کام کر سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پڑھائی میں بھی کس کو ہیلپ بچے ہی ہیلپ کو ہے, جو ہیلپ کرتے ہیں وہ ماں ہی ہوتی ہے. اگر ماں کو کچھ نالج نہیں ہوگی تو وہ ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو جی ویری گڈ. آئی ہیو سم کوسچنز میم نویل, آپ نے کچھ کہنا ہے, پلیز گو اہیڈ. ہاں, میں ایک بات یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو کوئی اس طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں یا ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے جو میلز ہیں یا باقی فیملی ممبرز ہیں ان کے اگینسٹ جائیں یا کچھ اپنے جو بھی ان کی باؤنڈریز ہیں یا لمیٹیشن ہے اس کو کراس کرنا ہو. آپ گھر میں رہ کے اپنی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ ان کو کنونس کر کے ان کے ہیلپ کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. اور میں خود اسی طرح کرتی ہوں, موبائل سے میں گھر سے آن لائن کام کرتی ہوں اور بہت سی عورتیں کر رہی ہیں. اور ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلز ہوتے ہیں بٹ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فرسٹ اسٹیپ کہاں سے لیں, انیشیٹو کہاں سے لیں. تو یہ اس سلسلے میں آپ کے یہ ہیلپ فل ہوگا. یہ جو ہمارا ایونٹ ہے 2 دن کا, آپ اس کو ضرور جوائن کریں. جی ویری گڈ. اور 2 دن جب ہم کہہ رہے ہیں تو آج 30 اکتوبر 1 گھنٹے کے لیے یہ پروگرام چلے گا, اور کل اسی ٹائم پہ پاکستان کے 4 سے 5 بجے پروگرام چلے گا. ہم آگے مزید بتائیں گے کہ کس طریقے سے مین ٹاپک تو مینٹل ہیلتھ ہے. تو اگر آپ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہیں تو بہت پرابلمز, رکاوٹیں آ سکتی ہیں گھر کے کام میں بھی, آپ کے لائف سٹائل میں. نارملی اگر آپ دیکھتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ فوراً بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر دوائی دے گا اور یہ انجیکشنز یا تو ہاسپٹلائز کریں گے فزیکل طور پہ, بلکہ کوئی زیادہ غور نہیں کرتا ہے کہ ذہنی طور پہ بھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے. اینڈ آئی وانٹ ٹو میک دس کلیئر کہ یہاں پہ آپ پلیز گیٹ میننگ, اپنا مائنڈ کو اوپن رکھیں جو بھی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اپنے نالج سے, اپنے ایکسپیرینس سے, کہ سب سے پہلے جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاگل ہیں یا یو نیڈ ٹو جوائن دا مینٹل ہاؤس اور یو آر کریک. سب سے پہلے جب بندہ بات کرتا ہے ذہنی صحت کے لیے فوراً لوگ کہتے ہیں ارے سائیکیٹرسٹ سے آپ ملیں, اور سائیکیٹرسٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ پاگل ہیں. کیونکہ بچے جب ہم اسکول میں بھی ہوتے تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے, ہاں تیرا دماغ خراب ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ, اور یو آر سائیکی. without knowing the meaning of these words we are not crack. ہم لوگ پاگل نہیں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, کیونکہ اگر آپ کے ذہن بالکل ریلیکس اور کمفرٹیبل ہے اور آپ نے اس کو اس کی کیئر کی, تو I'm sure Madam Nabila, being a psychologist and counselor, she'll further endorse it that mental health means a lot of things. آپ اچھا پڑھ سکتی ہیں, آپ اچھا کام کر سکتی ہیں, آپ کا رشتہ داری بھی, ریلیشن شپ اپنے میاں کے ساتھ, اپنے گھر والوں, پڑوسیوں کے ساتھ, یہ سب افیکٹ ہوتا ہے جب آپ ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہیں. اوور ٹو یو میم نبیلہ. بالکل. اب مینٹل ہیلتھ میں اگر ہم بات کریں تو اس میں زیادہ تر یہ نہیں ہے کہ ڈس آرڈر ہے, کوئی کسی کو بہت زیادہ ڈس آرڈر ہے, کوئی ڈپریشن تو آج کل خیر ایک کامن چیز ہے, انگزائٹی بھی, لیکن اور بھی بہت سے ڈس آرڈر ہوتے ہیں سائیکولوجیکل, جس میں شیزوفرینیا ہے, بہت زیادہ فوبیاز ہوتے ہیں. وہ نہیں, آپ کو اگر فار ایگزامپل آپ کو اینگر زیادہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے, آپ سے کچھ بات برداشت نہیں ہو رہی کسی دوسرے کی, جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ میں پرابلم ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایسے اسٹرک ہوا ہے, یہ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے اور سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بٹ
جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو یوز کر کے یا اس تھراپی کو یا اس کو مینٹین کر کے میں اپنی اس چیزوں کو اوور کم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اس کی لائف میں سکسیسفل ہے. کیونکہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ہی ملی ہے, بار بار تو نہیں ملے گی. اور آپ اپنی لائف کو اگر زیادہ پرپزفل اور اس کو ہیپی بنانا چاہتے ہیں, اور جو آپ کے پرابلم ہیں اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں, پرابلم وہی میں بتا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا دل بلا وجہ اداس ہے, یہ بھی ایک ٹائپ کا آپ سمجھ لیں ڈپریشن کی ہی سمپٹم ہو سکتی ہے. آپ بہت زیادہ انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں, آپ سینسیٹیو زیادہ ہے, ہر ایک چیز کو اپنے اوپر لے رہے ہیں, ہر بات کو, یا تھوڑی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں, یا آپ کو فیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں, لیکن یہ بعد میں کوئی بڑی کسی بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو چھوٹا نہ سمجھے, ویسے تو چھوٹے ہیں لیکن ان کو چھوٹا نہ سمجھے. ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑی بیماری ہو جس میں شیزوفرینیا ہے یا اور زیادہ پیچیدہ آ جاتی ہیں, ٹراماز آ جاتے ہیں. بٹ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, آپ کو بلا وجہ کسی کی بات بری لگ رہی ہے, سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو ان کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور کسی پروفیشنل کے ساتھ کنسلٹ کریں اور ان کو ٹھیک کر کے اپنی لائف کو اچھا بنائیں, اپنے ریلیشن شپ کو اچھا بنائیں, اور ارننگ کریں, اپنی جو لرننگ کریں. مطلب بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں کرنے کے لیے لائف میں, تو وہ ان سب سے آپ اپنی لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں. اور آگے یہ کہ آپ اپنے بچوں کی لائف کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں. جب آپ خود مینٹلی طور پہ ہیپی ہوں گے تو آپ ریلیکس ہوں گے. سب سے مین چیز ہے ریلیکس ہونا, وہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ریلیکس کیسے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی, ویری نائس. آپ نے بہت اچھے طریقے سے میم نبیلہ سمجھایا ہے, اینڈ آئی ایم شیور ہماری آڈینس بہت بینیفٹس لے رہی ہیں آپ کے شیئرنگ کے ساتھ اور انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, دیٹس اوکے وتھ یو, وتھ یور پرمیشن. اوکے, تو زبردست. سو میم نبیلہ, آپ کچھ بتا سکتے کہ فرق اصل میں کیا ہے بٹوین سائیکالوجی اینڈ مائنڈ سائنس, بیکاز یو آر آلسو مائنڈ سائنس تھراپسٹ, رائٹ؟ تو ذرا یہ تھوڑا سا سمجھا دیں. جی, جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ اب سائیکالوجی میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر وہ ڈس آرڈر آ جاتا ہے جس میں سائیکوٹک ہوتے ہیں, نیوروٹک ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے عام انسان پارٹی کے ہم اس سے کریں, تو یہاں پہ عام لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ ٹرمینالوجی یا اتنی زیادہ چیزوں کی شاید انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو جسٹ میں سمپلی اتنا انٹروڈکشن کروا دوں کہ بہت زیادہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو بہت ڈینجرس حد تک ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ بہت ہائی لیول پہ چلی جاتی ہیں, لیکن وہ سائیکالوجی میں ہی آپ اس کو اس کے میڈیسن کے ساتھ اس کو آپ کیور کر سکتے ہو. بٹ کچھ چیزیں آپ اسپرچولی کرتے ہیں جس میں آپ اسپرچولی, اب یہاں پہ ریلیجن کا نہیں ہوتا. جو مائنڈ سائنسز ہے نا وہ تھوڑا سا کنیکٹڈ ہے اس چیز سے, اور یہ اتنا مطلب واسٹ ایک سبجیکٹ ہے, کیونکہ سائیکالوجی میرے خیال میں ایک لمیٹڈ سی فیلڈ ہے, لیکن مائنڈ سائنسز میں آپ کی پورا وہ آ جاتا ہے نا, آپ کا ہول اسٹرکچر, آپ کی تھنکنگ, تھاٹس, بیہیویئر, اور جو پیٹرن ہوتے ہیں, پھر اس کی روٹ کازز پہ جانا, اور پھر اس کو اب سب سے اگر ہم اس کو بیسک میں دیکھیں تو آپ کی جو تھاٹس ہیں نا وہ کیسے بنتی ہیں, اور کیسے آپ کی تھاٹس کے ساتھ آپ کی پوری باڈی جو ہے افیکٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ اس کا کنیکشن سمجھتے ہیں, اور اس کو پھر اس کو ایک اسپرچولی طریقے سے بھی آپ اس کو ہیل کرتے ہیں. یہ باڈی اینڈ مائنڈ کا جو کنیکشن ہے, آپ کی سول کا جو کنیکشن ہے, وہ اس مائنڈ سائنسز میں اس کی اسٹڈی ہوتی ہے بیسیکلی. اور پھر اس کی ڈفرینٹ تھراپیز ہوتی ہیں جو کہ سائیکالوجی سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ کافی مطلب لانگ ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے سائیکالوجی کی, اپنی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کون سی تھراپی یوز کر کے اس کو کتنا جلدی فائدہ ہوتا ہے یا بینیفٹ ملتا ہے. کیونکہ سائیکالوجی میں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے, کاسٹلی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مائنڈ سائنس میں یہ ریپڈ ان کا رزلٹ مل جاتا ہے اکثر, موسٹلی میں یہ ہوتا ہے. اور باقی وہی بات ہے کہ تھنکنگ تھاٹ پیٹرن کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں کہ کیسے ہماری جو تھنکنگ ہے وہ ہماری فزیولوجی پہ افیکٹ کرتی ہے, اور ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سمپلی ورڈز میں بتا رہی ہوں کہ مائنڈ اور باڈی کا ریلیشن اور آپ کی سول کا, اس طرح سے ہم مائنڈ سائنسز کو ڈیفائن کرتے ہیں. ویری نائس, ویری, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے. ابھی مجھے بھی بہت کلیئرٹی مل رہی ہے کہ جو کام آپ کر رہی ہیں اٹس ریئلی انفارمیٹیو, کہ ہاؤ تھنگز آر بیلنس, ہاؤ ٹو چینج.
ये बताएं मैम नबीला कि मतलब जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, ये एक छोटी चीज नहीं लगती है, मतलब मुझे तो बहुत ही बड़ी लग रही है, मतलब कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है या 1 महीने का स्टडी नहीं है, आपने लगता है मुझे कि सालों का एजुकेशन एंड स्टडी लगाई है। एक और चीज जो मेरी जजमेंट है कि एक चीज स्टाइल जो मेथोडोलॉजी है आपका, आप हर क्लाइंट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, राइट? वो चेंजिंग्स होती हैं। तो कैन यू क्लैरिफाई दिस, इज दैट क्या आप एक ही, जैसे होता है एक ही टोपी सब पे फिट होगा, या आप किस तरीके से हैंडल करती है? और दूसरा हिस्सा जो सवाल का है कि आप क्यों इस चीज में गई हैं और किस तरीके से गई हैं इस टॉपिक में? बिल्कुल, इसमें ना जैसे अगर हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म जो हमें वर्कशॉप्स में हमने सीखा। अब हमने साइकोलॉजी में हिप्नोसिस सीखा, हिप्नोथेरेपी कैसे करते हैं, सिर्फ एक टॉपिक था जो मैंने किया। अब मुझे नहीं पता आजकल की क्या चल रहा है। तो उसके बाद फिर उसकी वर्कशॉप में हमने उसकी प्रैक्टिकल चीजें सीखी कि ये इस तरह से होता है। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि क्या एक ही टोपी सारों के साथ, नहीं ऐसा नहीं होता। डिफरेंट जो होते हैं लोग जिनको चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, उनको डिफरेंट थेरेपी से ही किया जाता है। बस कुछ ऐसी थेरेपीज जो होती है जैसे एनएलपी की कुछ है जो हर एक के लिए यूजफुल होती हैं, या हिप्नोसिस की, रिलैक्सेशन की। लेकिन मोस्टली ये भी होता है कि हर एक के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक का इशू डिफरेंट है। लेकिन एक बात है कि हम इसमें ज्यादा हिस्ट्री नहीं लेते, हम सोल्यूशन पे जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस नहीं होता है। ये चीज इसमें होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में हिस्ट्री टेकिंग और वो एक बिल्कुल काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर हम अपने इंटरेस्ट के लिए ले लें इसमें हिस्ट्री, तो वो भी एक होता है थोड़ी बहुत, बट ज्यादा हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। और जब वो प्रॉब्लम अपनी सिम्टम्स बता रहा होता है कोई, तो उससे आइडिया हो जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर उसको, अगर किसी को ट्रॉमा है तो वो तो हिस्ट्री ऑफ कोर्स होगी कि ट्रॉमा की हिस्ट्री है, इसको किस हद तक है। तो बाकी इतना नहीं होता, ये डिफरेंट है साइकोलॉजी से ना काफी। एक और चीज जो मैं साइकोलॉजी वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ अक्सर हम लोग की ये हो भी जाती है कि वो एक्सपेरिमेंटल होता है। इसमें कुछ चीजें आपकी बियॉन्ड द रियलिटी भी होती हैं जो आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं होती। माइंड साइंसेस में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, तो इसलिए फिर साइकोलॉजी वाले तो इस बात पे होते हैं, क्योंकि वो मुझे फिर एक लिमिटेड लगती है कि आपको बस फिक्स होकर रहना पड़ता है कि ये इस पे रिसर्चेज हुई हैं। रिसर्चेज तो हर जगह होती है, इस पे ये एक्सपेरिमेंट हुए हुए हैं, उस पे जो भी उन्होंने उस पे उसका निकाला हुआ सोल्यूशन या उसका जो एक्सपीरियंस करने के बाद, तो वो उसी पे बस स्टक होते हैं। तो वो मुझे काफी एक बैकवर्ड सी चीज लगती है। लेकिन यहाँ पे आप नई नई चीजें, और आप अपने तौर पे भी कोई यूज कर सकते हैं, खुद अपनी भी थेरेपी बना सकते हैं, अपना एक बना सकते हैं। जो आपका वे ऑफ ट्रीटमेंट है या कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी इज डिफरेंट, ये है इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम तो बहुत ही ज्यादा सीख रहे हैं आपसे मैम नबीला, डेफिनेटली। अच्छा, आपने वो जवाब नहीं दिया कि आपने क्या ये सीखा है, विच मुझे अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि 1 महीने का काम नहीं, आपने वर्कशॉप शेयर किया। तो आपके कितने साल इसमें लगे हैं जहाँ पे आप अब आज हैं? हाँ जी, अभी मुझे तकरीबन 2016 में मैंने ये स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, साइकोलॉजी मेरी फील्ड थी। लेकिन मैंने 2016 में स्टार्ट की थी पहली वर्कशॉप। उसके बाद अभी तक मैं कर रही हूँ, रिपीट भी करते रहते हैं हम लोग। कुछ ऐसी होती है वर्कशॉप जो, जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना इसका, कंप्यूटर का, इस तरह हमारे माइंड का भी अपडेट होता है। एक हमारी वर्कशॉप वो होती है, तो वो हम रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि उसमें वायरस आ जाता है ना, आपका माइंड बार बार करप्ट हो जाता है। तो ये चीजें इसी तरह है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं माइंड को। ये हमारी वर्कशॉप में बेसिकली होता है। तो इसे मुझे काफी साल लगे हैं, और मेरी अपने हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने सीखा भी ज्यादा, और मेरा मुझे शौक भी था हमेशा से इसमें ना, मेरा बहुत ही फेवरेट ये चीजें हैं। लेकिन अब सारी चीजें सीख ली हैं तो अब क्यूरियोसिटी नहीं इतनी रही। पहले क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है इसमें, कैसे होता है। अब वो लगता है कि काफी कुछ समझ आ गई है चीजों की। चलो वेरी मैम, अब नाइस। आपने मुझसे काफी क्वेश्चन कर लिया, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर चलिए, लेकिन इतना आप पूछिए, क्या बताओ आपको? इतना इंटरेस्टिंग है ना ये माइंड साइंस का, कि इस पे हम लोग, मैं खुद भी पहले बहुत ज्यादा क्यूरियस होती थी कि ये क्या है, कैसे काम करता है। और वाकई इसमें कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो फिर भी होती हैं।
अच्छा ठीक, अब आप मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह काफी इयर्स मैंने देखा आप ये बायो में कि आपने भी काफी स्ट्रगल की और बहुत कुछ आपने सीखा है, बिजनेस एंड लीडरशिप कोचिंग वगैरह आप कर रही हैं। तो कितने, वही बात है कि मेरा भी मेन क्वेश्चन यही मैं सोच रही थी आपसे पूछे कि कितने साल की आपकी ये स्ट्रगल है? उससे पहले आप जॉब वगैरह कर रही थी बिफोर जी मैरिज, जी लेकिन आफ्टर दैट एक इंसान जो है शादी के बाद थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम दे रहा था, उसके बाद कब से आपने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया, और उसकी रीजन क्या थी आपके अंदर? कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी कि आपने इसको स्टार्ट किया? टफ क्वेश्चन, बल्कि बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है जी, बिल्कुल, कि मेरा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बहुत सीनियर कंपनीज में, लाइक फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी, एडी मार्कर एंड सन्स, फार्मास्यूटिकल्स में मैंने काम किया शादी से पहले। तो लाइफ औरत की डेफिनेटली चेंज होती है शादी के बाद, कि मतलब फैमिली को संभालना खुद से, एंड देन बच्चे, ये वो। तो आई बिकेम अ फुल टाइम स्टे होम मम। जैसे बच्चे, मतलब पूरा वो पाकिस्तान, आई एम आल्सो पाकिस्तानी बाय द वे, बोर्न इन क्वेटा, पार्टली रेज्ड क्वेटा में और पार्टली रेज्ड इन कराची। तो मुझे बिल्कुल छोटा टाउन का भी पता है और शहर का भी, दोनों पड़ता है। मेरी परवरिश दोनों जगहों पे हुई है। अभी ऐसा है कि जब मैं आगे मूव हुई शादी में, तो बच्चे भी पल रहे थे। थोड़ा सा इजी जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, दूध पिला लिया, थोड़ा सा नैपी चेंज किया, ये वो, स्कूल लेकर गए। बाकी चैलेंजेस बहुत आती हैं जैसे बच्चे बढ़ते हैं, एंड व्हेन दे आर लिविंग विथ मिक्स्ड काइंड ऑफ नेशनैलिटीज एंड पीपल। तो उस वक्त काफी जो चैलेंजेस आ रहे थे, इट वाज डिफिकल्ट, एंड आई वाज एक्सपोज्ड टू अ काउंसलिंग कोर्स, जिसपे मैंने कहा चले, क्योंकि उस वक्त भी थोड़ा सा इंटरनेट ये वो स्टार्ट हुआ था शुरू शुरू में, मेरे पास सिर्फ मोबाइल था। तो मैंने कहा चले घर पे मैं स्टार्ट करूं स्टडी, जब बच्चे सो रहे हैं या रात में मैं करूं। तो इस तरीके से मैं एडजस्ट करती थी कि किस तरीके से स्टडी और अपने लाइफ को मैनेज करना विदाउट निग्लेक्टिंग द होम। और जैसे मैंने मतलब कदम डाला है इनटू साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, मतलब मुझे इट वाज रियली एन आई ओपनर। मुझे इतनी चीजें नजर आई थी जो मुझे, मैंने पहले देखा नहीं था, कि क्यों बंदा गुस्सा होता है, क्यों वो अपसेट होता है, क्यों ट्रॉमास होती हैं, किस तरीके से चीजें अफेक्ट हो सकती है पैदाइश से पहले, मतलब पैदाइश के दरमियान, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके बाद बच्चे पे भी कैसे इफेक्ट हो सकता है। सो दिस ड्रू माई क्यूरियोसिटी। मैं जानने चाह रही थी, वो जैसे वो चूहा ना जो खोदता है अंदर, तो मेरा भी मूड था और खोदू 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 और जानू इसके बारे में। इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। और मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि एवरी ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली विमेन, हर इंसान को साइकोलॉजी सीखना चाहिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन लाइफ। दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ नहीं, बल्कि अपने लिए। तो अपने लिए पहले आप अपने, जैसे वो होता है जब हम जहाज को भी बोर्ड करते हैं, क्या नॉर्मली एयर होस्टेस यही कहती है ना, पहले आप मास्क अपने ऊपर डालें, हाँ, फिर आप बच्चे को देखें और दूसरों को देखें। आपको पता है, एक औरत होते हुए, लेडी जो हमारी यहाँ पे अभी सुन रही है, वो मानेंगी कि जब भी खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो हम ऑलवेज भागते बच्चे को बचाने के लिए। ये नहीं सोचते कि अगर हमारी सांस रुक गई तो फिर हाँ, आगे हाँ, बच्चे का क्या बनेगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये जो साइकोलॉजी नॉलेज का मास्क पहले हम अपने ऊपर डालें, फिर हम अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। और यही मैंने अपनी लाइफ में यही किया बच्चों के साथ, एंड आई एम टेलिंग यू, इतनी चेंज आई है कि फैमिली ने बकायदा बोला कि मेरे अंदर बहुत, जो लोग मुझे जानते हैं अंदाजन 20 साल पहले, वो डेफिनेटली ये इस वक्त भी कहेंगे ये वो डेफनी नहीं है जो हम जानते हैं। और ये बेनिफिट्स हुई है फ्रॉम साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। तो मैंने बहुत टाइम से ये किया है, अंदाजन 20 साल से ये चल रही है। फिर मैंने क्यों ट्रांजिशन किया है इनटू कोचिंग, जैसे मैम नबीला ने बोला है कि सर्टेन हिस्ट्रीज में हम नहीं जाते हैं, राइट। एंड मोस्टली काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी गोज इनटू द माइंड डीलिंग एंड अप्रोच। अभी कोचिंग में वो फर्क आता है कि वी गो इनटू जो आप करने चाहते हैं, जो आप बनने चाहते हो। बट वी हैव टू सी दैट बोथ आर लिंक्ड। आई नो कि काफी कोचेस होते हैं जो सिर्फ कोचिंग करते हैं, बट इफ दे आर नॉट इक्विप्ड विथ साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, दे
डू नॉट नो कि वो अपने क्लाइंट्स या जो बंदे उनके पास आ रहे हैं, क्यों वो रुकावट आ रही है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो कुछ ना कुछ तो पीछे होगा ना। ये हो सकता है कि खानदानी मसला, जिस माहौल में आप गुजर चुके हैं, या कोई खौफ है आपके अंदर। तो हम लोग रूट कॉज में जाती हूँ, तो इसमें बहुत गारंटीड रिजल्ट्स आते क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ भाई, हम यहाँ पे जाने चाह रहे थे, ये अपना रुकावटें बिल्कुल हटा रही हैं इस तरीके से। तो फिर टूल्स होती हैं, थेरेपीज होती है, जिसके साथ मैं काम करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही बरकत है उनके कि मैं इंटरनेशनली काम करती हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। इसलिए मैं चाह रहे इंटरनेशनल काम करने का फायदा ये है। और आप पूछते भी होंगे कि यार हमारी पाकिस्तानी लेडीज क्यों इंटरनेशनली काम कर रही है, हमारे कंट्री को क्यों नहीं है। आई डेफिनेटली, एज यू कैन सी, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द AIP, राइट, वुमेन्स विंग में। यही चाह रही हूँ कि मैं अपनी औरतों को हेल्प करूं पाकिस्तानी होते हुए। दूसरी है कि दूसरों से मिल के इंटरनेशनली मैं सीखती बहुत हूँ, और फिर मेरे ऑल्सो कॉन्टैक्ट्स होते। तो इसके जरिए से आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ women टू लर्न कि दूसरी औरतें कैसे कर रही हैं, उनकी अप्रोच कैसे है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके कल्चर्स को आप अडॉप्ट करें, आप सीखे, आप मतलब बालिग हैं, आपका दिमाग चल रहा है, मतलब थोड़ा सा अपने माइंड लगा के अपने मजहब के मुताबिक, अपने फैमिली के कल्चर, हैबिट्स, बिलीफ्स को मद्देनजर रखते हुए आप फिर करें। हर इट रियली हेल्प्स। अभी भी आई एम गोइंग टू नेक्स्ट मंथ, मैं एक फ्री चैलेंज कर रही हूँ बिजनेस का, जहां पे मैं लेडीज को हेल्प कर रही हूँ किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जारी रख सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम मोस्टली आ रही है ओवरऑल, सब कहते हैं पैसा 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 पैसा। उन्होंने पैसे को खुदा बनाया है। पैसा जरूरी है, किस तरीके से करेंगे वो मैं खुद ही पर्सनली सिखाती हूँ। मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करी, क्योंकि ये बताने के लिए कि इस चैलेंज में इट इज नॉट ओनली पाकिस्तानी वुमेन, इट इज ग्लोबल इंटरनेशनल वुमेन। मतलब इवेंट इंग्लिश और उर्दू में होती। और फिर मैं क्या करती हूँ, मजीद में बैठती हूँ सेशन के बाद, मैं कहती हूँ जिसने उर्दू में कुछ पूछना है आप पूछ सकती है। और सिर्फ लेडीज है तो अगर आप पर्दे नशीन है, कुछ है मसाइल, आप वो भी कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। बिकॉज मैं एक औरत हूँ और सारे लेडीज होंगे, और इसीलिए हम विमेन्स विंग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप एक बुलावट महसूस करती हैं कि मैं भी कुछ करूं, मैम डैफनी और मैम नबीला के साथ वो कर रही है, मैं भी एक लेडी हूँ, प्लीज आगे आए। हम चाहते हैं कि आप आगे आए, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम हर एरिया को कवर नहीं कर सकते, सब चीजें हम जानते नहीं हैं। हम अपनी एबिलिटीज में जितना कर सकती हैं लेडीज हम कर रहे हैं। और अगर मर्द हजरात सुन रहे हैं इस वक्त, प्लीज इंकरेज करें अपने औरतों के कि वो भी आए, क्योंकि इट हेल्प्स यू। चार दीवारों में बैठ के मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, यू हैव टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। आप दूसरे से बातचीत करें, मिलें, उनसे सीखे कुछ आइडियाज, ये वो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारा सक्सेस जो है उस पे है कि अगर आप सक्सेसफुल है, हम सक्सेसफुल है, और हम यही चाह रहे हैं, इसी वजह से ये इवेंट हो रहा है। ओवर फर्दर टू यू मैम नबीला, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ जी। एक बात आप जो कह रहे हैं कि आजकल और लोग ये कह रहे हैं पैसा 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 की बजाय वो कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। तो हम यही कहते हैं कि आप प्रॉब्लम की बजाय सोल्यूशन पे फोकस करें, महंगाई को आप ओवरकम कैसे करते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप ये जो चैलेंज बता रही हैं मैम, उसको अपनी मेंटल हेल्थ को पहले इम्प्रूव करें और फिर चैलेंज ज्वाइन करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये मेरे साथ, आपके साथ मेरा, जैसे आपने भी बताया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो परवरिश वगैरह है वो भी पाकिस्तान में हुई। तो जैसे हमारा एशियन कल्चर है पाकिस्तान में स्पेशली, कि औरतें जो है वो एक एज पे आके उनकी जो यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो काफी लो हो जाती है। यानी मिडिल एज में समझ लीजिए, हम लोगों की जो एज है अगर 10 5 7 साल पीछे भी लेके जाए, तो वो बस समझती है कि हमने बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए या शादियां भी हो गई, तो अब वो हमने क्या करना है, लाइफ को क्या करना है। तो वो अपने लिए नहीं सोचती। तो आपके पास कौन सा ऐसा हिडन फैक्टर था या मोटिवेशन थी जिसने आपको इतना एनकरेज किया कि आप इसमें इतनी स्ट्रगल करें और एक नई सिरे से सारा कुछ दोबारा से बनाएं? क्या फैमिली की सपोर्ट ज्यादा थी या आपको खुद से शौक था या क्या था?
दोनों चीजें थी मैम नबीला के सपोर्ट भी था शुरू में। यस मतलब ये थोड़ा सा टफ था जब मैंने मियाँ को भी बताया कि मैं बिजनेस कुछ करने चाह रही हूँ, क्योंकि मैं स्टे होम मम बन गई थी जब शादी के बाद। ठीक है, तो जब ये थॉट आया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो उसने कहा कि मतलब है कि आपको पता है कितने पैसे लगेंगे इस चीज में, और कितना महंगा है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरी बात है कि नॉलेज, और मेरे भी दिमाग में था कि एक बिजनेस बंदा जो होता है, जैसे स्टीव जॉब्स है, सूट पहनेगा, 3 पीस सूट, जो एप्पल कंपनी का ओनर भी है, जो एप्पल फोन, आईफोन, आईपैड, ये वो। तो मैंने सोचा कि अपने दिमाग में ये था कि सूट पहनना होता है, मर्द ही करते हैं, ब्रीफ केस उठाया होगा, हाँ बड़े स्टाइल में। यार ये मैं नहीं कर सकती हूँ। इवन आफ्टर आई डिड माई कोचिंग स्टडी एंड काउंसलिंग, मतलब काफी ये मुझे बहुत मेहनत बैक स्टेज करना पड़ा अपने ऊपर। तो मैंने मतलब अपने जहन फोकस बनाया कि मैंने क्या करना है। द मेन ड्राइविंग फोर्स इज कि भाई मैं एक माँ हूं, और कोई माँ की जगह नहीं ले सकता है। जैसे मेरे हस्बैंड ऑलवेज कहते, अगर माँ बीमार है पूरी फैमिली बीमार है, अगर माँ खुश है तो पूरी फैमिली खुश है, माँ सेहतमंद है सब सेहतमंद है। और ये मत नजर रखते हुए मैंने ये भी मतलब मेरे दिमाग में था कि देखिए, एक एज नहीं होती है कि बच्चों को माँ की जरूरत हो। जो ज्यादा उम्र की भी है वो अग्री करेंगे कि यार जब आप 80 साल के आपके बच्चे, इवन अगर 55-60 ईयर्स, फिर भी वो मम्मी मम्मी तो करेंगे ही करेंगे। वो मम्मी मम्मी अम्मी अम्मी वाली चीज तो रुकती कभी भी नहीं है। लाजिम है कि जब आप एक मतलब वो आई थी कंसिस्टेंसी आपके, 9 महीने तो आप मम्मी के पास पास ही थे ना, जब कोई दुनिया का कोई कांटेक्ट नहीं था। इसीलिए बच्चे को कहते हैं कि जब बच्चा रोता है, आप इस सिरे पे डाल के थोड़ा सा लगाए, क्या सीक्रेट है उसका? ये है कि वो बच्चा वही दिल की आवाज सुनता है, हार्ट बीट ऑफ द मदर, जो उसने इन द वूम 9 महीने सुना है। तो उसको बड़ी सुकून मिलती है कि मुझे तो वही आवाज आ रही है, वही हार्ट बीट आ रही है। तो बच्चा इमीडिएटली खामोश होता है जब माँ गोद में लेती है। तो मैं जो भी काम अभी भी करती हूँ, मेरा तो यही है कि मैं बच्चों के लिए हूँ, मैं एक रोल मॉडल। बच्चे जो है ज्यादा टाइम मैम नबीला गुजारते हैं माँ के साथ। नो डाउट बाप को जॉब पे जाना है, बल्कि लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट, जब वो जॉब पे जाते ही वो मौजूद नहीं होता है घर में। तो अगर माँ हर वक्त सिर्फ झाड़ू पोछा खाना पका रही है और मतलब उदास बैठी है, क्या आप समझते हो कि बच्चे पढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ने चाहेंगे? इज देयर एनी होप टू लाइफ? नाउ इवन अर्लियर मैंने शेयर किया कि मैं काउंसलर से मैंने ऐड किया कोचिंग। व्हाई? बिकॉज आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। आजकल के दौर में हर बंदे को देखे कुछ कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, महंगाई है, पैसे नहीं है, प्रॉब्लम, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बंदे क्या कर रहे हैं? लाइफ की अहमियत नहीं है, मैं अपना जान दे दूंगा, मैंने जिंदा रहना नहीं है। आपको पता है कि ये अल्फाज हराम है किसी भी मजहब में, कि आप कहें कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं मरना चाहता हूं, या मैं अपना जान लूंगा या ले लूंगी। क्यों? आपकी जो जिंदगी है, आपकी जान जो है, वो एक तोहफा है खुदा की तरफ से। अल्लाह ने आपकी फैमिली को आपका मतलब तोहफा दिया है। तो आप किस तरीके से वो तोहफा को तबाह और खत्म कर सकती हैं? आई एम सॉरी, फिर तो आपको जन्नत को तो आगे छोड़ दोजख भी नहीं होगा नसीब। तो आप कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं कि एक दूसरे को जन्नत नसीब होना चाहिए। तो अगर जन्नत नसीब होना चाहिए, वो तब नसीब होता है जब आप ऊपर वाले अल्लाह मियाँ के जो भी कानून है, जो भी उसने बताया आपको कलाम में, आप उसके मुताबिक आप चलें। अगर आप उस तरीके से चलते हैं, खुदा को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपने और ऑनेस्टी से काम किया और अपना दिल और दिमाग लगा लिया, आई एम टेलिंग यू लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, मैं खुदा को अपने सामने रखती हूँ और उसके आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं 2 चीजों में मानती हूँ अपनी कामयाबी। Believe in God, believe in yourself. If you believe in Allah and you believe in yourself,
nobody can destroy you. मैं खुद ही पली हूँ, मतलब शादी तक मैं पाकिस्तान में पली हूँ, मैं चलती थी रोड्स पे, मैं लेट जाती थी फंक इवेंट्स करने के लिए ये वो, बट आई एम टेलिंग यू आई बिल्ट माय ओन कॉन्फिडेंस एंड लाइफ एंड होप. अभी मतलब मैंने इतनी होप दी है बच्चों को भी. मैं नहीं जानती थी इंटरनेट, जूम कॉल, स्ट्रीम यार्ड, ये लफ्ज मैंने कभी सुना नहीं है, बट आई पुश्ड माई सेल्फ. और इतनी चीजें हैं कि आप ऑनलाइन कर सकती हैं, सीख सकती हैं, और यू रीच आउट टू अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू थ्रू आवर अदर शैडो मिनिस्टर्स. हमारी सिर्फ शैडो मिनिस्टर नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, हमारे पास काफी मतलब हेल्प है ग्रुप में, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू. थैंक यू. जी बिल्कुल, आप यही बता रही हैं ना कि यही हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर भी पोटेंशियल था, आपने उस पर स्ट्रगल करने की जरूरत है, या एक आपको जस्ट डायरेक्शन की जरूरत है, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चलाए या कोई आपको गाइड करे. तो औरतों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस चीज को करें. अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या समझती हैं हमारी औरतें कहाँ पे खड़ी हैं इस वक्त, जो अभी जो ये दौर गुजर रहा है, इसमें इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतने स्किल्स वो लर्न कर सकती हैं, फ्री में कर सकती हैं, हर चीज की उनके पास है. तो फिर भी अगर वो किसी वजह से स्टक है और फिर सिर्फ कंप्लेन कर रही है, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर वो आपको क्या लगता है, स्पेशली पाकिस्तान की लेडीज जो है वो किस स्टेज पे खड़ी है, क्या वो करना चाहती है और कर नहीं पाती, या कितने परसेंट जो है वो कर रही है, सक्सेसफुल है, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान की औरतों के बारे में अगर मैं कहती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद नो ऑफेंस, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि व्हाट्स द ट्रूथ इज द ट्रूथ. ओके, ये है कि अगर औरत करने भी चाहती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं. ठीक है, अगर वो ओवरराइड करती है अपने हस्बैंड को और फिर भी करती हैं, तो लोग कहते हैं ओ ये औरत को देखे, ये किस किस्म की औरत है. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, सॉरी. तो वो बात फौरन आती है कि ये व्हाट काइंड ऑफ एन औरत, उसको पता नहीं ये ज्यादा ही तेज है, बहुत ज्यादा बोलती है, ऐसे वैसे करते. थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द होम. इट स्टार्ट्स डायरेक्टली, घर से शुरुआत होती है. बचपन में स्टार्ट होता है कि कंपैरिजन माँ बाप करते. आपके हाँ भाई जा सकते हैं घर से बाहर, वो गली में तो पता नहीं घंटे घंटे क्रिकेट खेल सकता है, वो कर सकता है. जब वो आए तो भाई आपने खाना देना है पापा को, आपने भाई को देना है हर चीज को. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, करें, बट एट द सेम टाइम घर सिर्फ औरत या माँ या बेटी की नहीं है. एक घर जो है वो पूरी फैमिली का है, एवरी मेंबर. और घर जो बनता है माँ और बाप से, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल इंक्लूजन, इक्वल सपोर्ट होना चाहिए दोनों से. ठीक है, सबसे सारा प्रॉब्लम बर्डन जो आती है वो माँ के ऊपर आती है. आपने बच्चों को पालना है, उनको सिखाना है कैसे वॉशरूम जाना है, मुंह हाथ धोना है, पढ़ाई करनी है, उनको स्कूल पे छोड़ना है, खाना पकाना है. मतलब माँ की जो जॉब होती है ना, 24 घंटे की जॉब होती है विदाउट अ सैलरी एंड नॉट इवन अ क्रेडिट. कोई थैंक यू या शुक्रिया नहीं बोलेंगे. स्कूल में जाते हैं, वहां पे भी कंपैरिजन होती है ऑल द टाइम. तो जब ये कंपैरिजन होती है, आपके दिमाग में बैठ चुका है कि यार देखो, वो मैं बोलूं नबीला मुझसे अच्छी दिखे, वो कितनी अच्छी लग रही है, वो उसका रंग कितना है, मेरा कैसा है, ये व्हाई आर वी डैम कंपेयरिंग. बिकॉज घर से ये हो चुका है कि माँ कही अरे अच्छा, आप जरा देखें कि आपने कैसे ये लिपस्टिक लगाई है, आप देखें अपनी मतलब पड़ोसी की लड़की को कि वो कैसे पढ़ रही है, वो कैसे उसकी चाल चलन है, वो कैसे करे. वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग. और लड़की को बोला जाता है सिर्फ घर में बैठ के घर का काम सीखो. अभी जैसे मैंने खाने का बात की है, ओके, आप भाई को और हस्बैंड को चलो खाना दिया, वो थके हुए काम से या बाहर से आए हैं, बल्कि यार कम से कम वो प्लेट तो उठा के डाल सकते सिंक में, वो थोड़ा सा धो भी सकते. क्या आपके लोगों की ईगो है क्या? मर्द आपकी मर्दानगी चली जाएगी मतलब अगर आपने एक प्लेट धोया घर में? आप लोग कहते हो कि आई लव माई वाइफ, मैं वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि आपने तो उसको तो नौकरानी से बढ़ के रखा हुआ है. नौकरानी को भी एक तो आप सैलरी देंगे, नौकरानी भी आपका तमाशा नहीं लेगी. वो भी एक टाइप में गई साहब मुझे तो सोना है अभी, या मुझे घर जाना है साहब, अभी मैं थक गई हूँ, मेरी भी फैमिली है.
बीवी को क्या आप लोग ने फ्री में ले लिया कि मतलब है कि ठीक है वो एक मासी है, फ्री में वो करेगी, बच्चों को पैदा करेगी, वो पालेगी, वो हर चीज मुझे करेगी। लगता है, मैं डेफिनेटली सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुझे यस लगता है यस। कि हमारी इस बात से ना हमारे भाई हजरात नाराज ना हो जाए। नो बट इट्स अ फैक्ट। नहीं नबीला आई नो, जैसे मैंने कहा कि कई ऑफेंड होंगे, अगर मैं ये बातें नहीं करूंगी तो कैसे इनको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कहते बिल्कुल। कि तू कर जा नबीला, तो कर काम, तू क्यों नहीं करती, देखो डैफनी करती। अरे यार तू तो इजाजत देगा तो फिर मैं वो करूंगी ना हाँ, आगे। नहीं तो एक बात मैं बताती यस। हूँ, मेल ये चाह भी रहे होते हैं कि हमारी औरतें काम करें, पर उनको वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, उनको डिस्करेज भी कर रहे थे। खैर, हमने औरतों को इस तरह से एम्पावर करना है कि वो अपने जो उनके हस्बैंड है, फादर है या ब्रदर है, तो वो उनको भी यानी कि उनको कन्विंस भी करें, उनकी हेल्प के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ आए, और वो खुद अपना भी बिहेवियर ऐसा बनाए ताकि वो जो सेकंड पर्सन है या अगला बंदा जो उसको इस तरह से फेस कर रहा है, औरतों के अपने भी तो मसाइल होते हैं ना, ये भी तो चीज आप देखें ना। तो हम औरतों को इस तरह से एम्पावर करेंगे ताकि वो मेल जो है वो उनको खुद कहें कि हाँ जी आप लोग जाओ, ये अब उनका काम है कि उनको कैसे वो कन्विंस करें। नहीं तो देखिए ये भी है नबीला, आई फुली अग्री जो आप कह रही है, मगर जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि वो घर से स्टार्ट होती है। जब वो बचपन से ही दबाई गई हैं हर वक्त, मतलब है कि बेटी होते हुए मतलब है उनकी कुछ वो वैल्यू नहीं है, इनकरेज नहीं होती है स्टडीज का या कुछ। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मलाला यूसुफजई कैसे वो कामयाब हो चुकी है दुनिया भर में, नोबेल प्राइज भी उसने जीता है। कैसे? मेन चीज है कि उसके वालिद साहब उसको सपोर्ट करता है, and even जी family is supporting her, encouraging her, although सबको पता है कि उसके भी लिए बहुत रुकावटें घर से नहीं आई, माशरे से आई है, बल्कि आगे सबसे पहले फैमिली शुड सपोर्ट, फैमिली नीड्स टू इनकरेज। ठीक है। अच्छा जी। जी, अच्छा आप बोले, कंप्लीट करें अपनी बात जी। नहीं और मैं ये भी कहने चाह रही हूँ साथ साथ, जब हम ये कह रहे हैं कि हम मतलब मर्द हजरात सपोर्ट करें, इनकरेज औरतों को करें, प्लीज रिमेम्बर जो भी मैं कह रही हूँ, मैं इसको कह रही हूँ कि कल्चर को मद्देनजर रख के, मजहब को मद्देनजर रख के, अगर आपकी औरत पर्दा नशीन है फिर भी वो काम कर सकती है घर से, इवन अगर पर्दा नशीन, ये है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपना दिमाग खोलने के लिए कि हम किस बिल्कुल, तरीके से करें। इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। मतलब ये है कि आजकल की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों के साथ आजकल की जो डिमांड्स हैं, सर्वाइवल तभी है कि अगर औरतें भी आपके घरों से काम करें, और बहुत सारे मर्द इस चीज को मतलब पसंद करेंगे कि उनकी औरतें उनको सपोर्ट करें फाइनेंशियली भी, और इसमें कोई ईगो नहीं है। बहुत सारी चीजें आ जाती है ना मेल्स की, वो ईगो आ जाती है कि हम औरतों से काम क्यों करवाएं, काफी कल्चर होते हैं यहाँ पे। बट फिर भी जैसे अगर वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी अच्छी एजुकेशन ले, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो, अच्छी लाइफ गुजारें, तो फिर औरतों को उन्हें थोड़ा बहुत अलाउ करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट जो भी बाउंड्रीज में लिमिटेशन है उसमें रह के, कि वो उसमें रह के काम करें। तो आप मैं एक और ये क्वेश्चन शायद आपने इसमें वो कवर भी कर लिया, बट मेरा ये था कि औरतों को कौन सी मर्दों के अलावा आप बताएं, औरतों को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ी होती है उनको कोई इनिशिएटिव लेने में। क्या उनकी अपनी लेजीनेस होती है, या उनका अपना एक कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है। अब मेल्स पे तो आपने ये बात कर ली कि घरों से भी परमिशन नहीं होती, नो डाउट, लेकिन अगर वो करना चाहे तो हर तरह के हर्डल्स के बावजूद भी वो कर सकती है। बट यस। अगर वो फिर भी नहीं करती तो उसकी क्या रीजन होती है, कौन सी आपने काफी चैलेंजेस भी देखे हैं, मतलब ज्वाइन करवाए हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि औरतों को कौन सी मेन प्रॉब्लम होती है, फेस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, कहीं स्टक होती है। मुझे जो लगता है मेनली कि उस उनके ऊपर बहुत ज्यादा डाला होता है, उनके कंधों के ऊपर, एंड दे एक्सपीरियंस बर्न आउट। ठीक है, ये है कि अगर एक फैमिली के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सपोर्ट होती है, डिस्कशन होती है कि हम किस तरीके से ये हेल्प कर सकते हैं एंड अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें गैर जरूरी होती हैं, जैसे हर रोज कौन बेडशीट चेंज करता है या सारे पर्दे चेंज करता है, ये बेवकूफी। अगर आपकी फैमिली में 2-3 बार हफ्ते में ये चीज हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर ये आपकी फैमिली का स्टाइल है कि ये हर रोज होना लाजिम है, फिर
every member of the family can support the woman, not only मियाँ but बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं. वो जो चीज है ना जो पाकिस्तान में हम कहते हैं बच्चा है छोड़ दो, बच्चे को खेलने दो, फिर बाद में जब बच्चा नहीं करते, जब बड़ा होता है तो सही की पिटाई भी पड़ जाती है कि आप इतने बड़े हो, आप काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं हम सिखाते बचपन से कि यार आप लोग भी शामिल हो, आप लोग भी हेल्प करें इन चीजों में. एंड वुमन नीड सपोर्ट, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है कि किस तरीके से हम एक बैलेंस क्रिएट करें. और इसी चीज पे मैं काम भी करती हूँ जहां पे आई हेल्प women टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस विदाउट निग्लेक्टिंग द होम. मतलब कि आप बच्चों को भी तवज्जो दे, घर को भी तवज्जो दे, आप अपने काम, बिकॉज ये कि हम औरतों को एक आउटलेट चाहिए. आई विल टेल यू कि जिस तरीके से मैंने कहा, जो मुझे 20 साल पहले जानते थे और अभी, आई एम टेलिंग आई एम अ वेरी हैप्पी वुमन. मेरे पास ना ही एक भी नौकर है घर में, ना ही ड्राइवर है, हर चीज हम लोग खुद करते हैं. ये कि भी अब बच्चे भी हमारे साथ हैं, बट स्टिल वी मैनेज एवरीथिंग वेरी हैप्पीली. दे अंडरस्टैंड. अभी भी जब मैं कॉल पे हूँ तो बच्चों को पता है कि मम्मा बस जा रही है इतने टाइम पे ऑनलाइन कॉल पे, या वो काम कर रही है, पहले से ही प्लान किया कि खाना माना देकर अरेंज एवरीथिंग. बट द सपोर्ट हैज टू बी देयर. कभी जब मैं हद से ज्यादा थक जाती हूँ, आई एम टेलिंग यू, माय हस्बैंड कम्स फॉरवर्ड, बच्चे सामने आते हेल्प करने के लिए. हाँ आप बहुत थके हुए, यू टेक अ ब्रेक, आज चले हम लोग आगे करके खाना पका लेंगे या आगे करेंगे ये वो. क्योंकि घर में के अंदर कोई शर्मिंदगी होनी चाहिए नहीं चाहिए. और ये मर्द औरत ड्रामा जो चलता है ना, वो पब्लिक के लिए सही है कि मैं आदमी हूं, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, या मैं औरत हूं, मैं खाना पकाऊंगी. या घर में कोई भी पका ले, कोई भी झाड़ू पोछा लगाए, किसने देख रहे दरवाजा को लॉक करके आप लोग करो अपने घर में झाड़ू नहीं, पोछा, मैं सपोर्ट आपको करें. बताती हूँ, आप जो बात करिए वो ठीक है आपकी फैमिली की बात, बट यहाँ पे हमारे कल्चर भी कुछ ऐसा है. आप लोग का वहाँ पे सेटअप है ना एक अलग से कल्चर, वहाँ पे और है ना वेस्टर्न भी हो जाता है. लेकिन यहाँ पे कल्चर अब स्पेशली कुछ घरों में फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, कुछ ऐसा होता है. और वो फिर उनमें मेल में फिर ईगो भी बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर इस तरह का स्टेप जो है वो नहीं लेते. तो ये वजह है कि लेकिन आप जब हम बात करें तो एक अवेयरनेस दे रहे हैं. हो सकता है लोगों को अवेयरनेस की भी जरूरत होती है. जब वो इस चीज को सुनते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है, मतलब हमें बताना तो पड़ता है कि हम लोग उसी पे बैठ के औरतें जो है वो बस बैठ जाए कि जी मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे सामने तो ये हर्डल्स है. तो आपको एक और इसी में मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि औरतें हमारे जो कल्चर की, पाकिस्तानी कल्चर की है, वो इस चीज को करना चाहती हैं या करना ही नहीं चाहती? और अगर नहीं करना चाहती तो उनके अंदर क्यों नहीं है ये चीज कि वो इस स्टेप ले, या उनकी अपनी ख्वाहिश होती है? क्योंकि आप जब तक किसी को किसी काम के लिए वो फोर्स नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद अपनी मदद आप ना करे. अल्लाह भी किसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है. अगर वो एक स्टेप लेती है, अगर वो इरादा भी करती है ना, नियत भी करती है, तो उनको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिलती है. और इस चीज पे उनका बिलीव होना चाहिए, क्योंकि हदायत या उसको मिलती है जो उसके लिए सोचता है. तो अगर वो औरतें सोचती ही नहीं है इस चीज के बारे में कि हम खुद अपनी जो है कोई वर्किंग करें, या हम अपना चलो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर ले, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है हम इसको वो करें सॉल्व. तो आपका क्या ख्याल है कितने परसेंट जो है औरतें इस चीज के बारे में, मतलब कोई भी बिजनेस करने के बारे में या वर्क करने के बारे में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के बारे में सोचती हैं घर से हट के, फॉर एग्जाम्पल अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए? तो क्या औरतें सोचती हैं कि सोचती ही नहीं? वो सोचती हैं क्योंकि एवरी औरत चाहती है कि उनके बच्चा अच्छा करें, तरक्की करें, और वो खुद भी. अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से द माइंडसेट के शुरू से सिखाया जाता है कि आपने घर में रहना है, आपने खाना पकाना है, आपने ये करना है. आई एम टेलिंग यू, आई माई सेल्फ दैट टाइप कि मैं भी शादी के बाद बिल्कुल घर में थी. मुझे बस पता था कि बच्चों को पालना है, संभालना है, खाना पकाना है, बस वही मेरी खुशी थी. बट स्लोली व्हेन आई गॉट बर्नड आउट, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई गलती इधर उधर की है, और वो गलतियां से मैं और औरतों को सिखाने चाह रही हूँ. जब आप फीसद कहती है, द मेन इश्यूज बिहाइंड इज वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन. हमारी प्रॉब्लम्स ये होती है एक्सपेक्टेशंस. हमारी जो चार्टें होती है कि भाई एक्सपेक्टेशन अपने से और दूसरों से, कि मतलब है और फिर कंपैरिजन, कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं कि देखिए वो कैसे तरक्की. अभी जो जैसे आजकल जी आपने कहा कि फेसबुक, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं,
But let me tell you, not all social media is true. Fake पीपल बहुत है, मतलब जो सिर्फ ड्रामा शोशा दिखाते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है ये वो, बट एक्चुअली पीछे आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके लाइफस्टाइल से. सो बट यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ कि यार मैंने देखा वो तो औरत इतनी अच्छी कर रही है, वो तो $1 लाख कमा रही है, मैं थोड़ी से ये कर सकती हूँ. अभी एक औरत जब सोचती काम करने के लिए, वो कहती है मैं करने चाह रही हूँ, बल्कि आई डोंट नो, या अल्लाह मैं कर सकती हूँ, हाय अल्लाह मैं कैसे करूं, कोई मुझे हेल्प कर, मैं तो नहीं कर सकती हूँ यार, इस तरीके से मैं किस तरीके से बोलूं. इसलिए अगर आप स्क्रीन पे देखते हो, जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, वी आर बोथ ड्रेस्ड अप डिफरेंटली, हम अपने कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप समझे कि पाकिस्तानी भी माहौल है पूरा, जहाँ पे मैम नबीला जिस तरीके से उसने पूरा वो नकाब ये वो हर चीज पहना है, सर ढका हुआ है. मेरा स्टाइल, although I'm raised in Pakistan, I'm come from a different culture, so my style is much more different, plus my environment where I'm living in is much more different, so it's okay for me to come in this kind of a प्रेजेंटेशन. अभी जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, या तो मर्दों या औरतों की, हम औरतों का मसला ये है कि हम खुद भी अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हैं, फिर हम वो बराबरी करते कि वो उस औरत की देखो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मेरे, आपको किसी का घर का अंदरूनी टॉपिक नहीं पता है. अभी आप भी जान रहे हो मेरी फैमिली का, जितना मैं बता रही हूँ, क्या मैं बताती हूँ कि कितना हम लोग कभी डिसएग्रीमेंट नहीं होती है, या कितना पोछा हस्बैंड लगा रहे हैं, नहीं, हम सब चीजें बाहर नहीं दिखा, क्योंकि ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है दैट वी कीप आवर थिंग्स टू आवरसेल्फ, हम सबको अपनी घरेलू चीजें बताते नहीं है सब बंदों को. तो मेन चीज है कि स्टॉप कंपेयरिंग and stop your to have expectations is good but not too much to, because शुरू में मैं भी कुछ नहीं थी, आई विल टेल यू कि मैं बोलती नहीं थी पब्लिक में, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बहुत क्वाइट, ये वो स्कूल में भी मुझे पता है कि मौका नहीं लगता था, तो आई वॉज ऑलवेज अ वेरी क्वाइट पर्सन. बल्कि खुद ही जब मैंने एक रोल मॉडल रखा अपने सामने, मैंने कहा कि इसकी तरह मैंने कोशिश करना है, आई विल डू ट्रेनिंग्स, आई विल लर्न. तो यू कीप अ रोल मॉडल अपने सामने और फिर उसको फॉलो करें, कीप एडजस्टिंग इट. आप जैसे आप खाना, जब हम औरतें खाना पकाती हैं घर में, ठीक है, अभी एक बच्चा मिर्ची, कच्चा मिर्ची नहीं खा सकता है, एक खा सकता है ज्यादा तेल, एक कम तेल. तो एक माँ जो होती है वो इस तरीके से वो कहेगी अच्छा हस्बैंड को तो मिर्ची चाहिए, अभी मैं क्या करूं. मैं ऐसे करती हूँ कि या तो ये खाना पका के 2 हिस्से करके फिर मिर्ची डालूं, या मैं काट के अलग मिर्ची डालूं ताकि वो ऊपर फेंक के इस्तेमाल करे. तो मतलब है वो एक सोल्यूशन ढूंढती हैं, राइट. सो यू हैव टू फाइंड योर सोल्यूशन ऑफ व्हाट सूट्स योर कल्चर, योर एनवायरनमेंट, अगर आप पाकिस्तान में रह रही हैं, और फिर आपकी बिलीफ्स, वैल्यूज और मजहबी तौर पे आपकी क्या फॉलो बिलीफ्स है. तो ये सब मद्देनजर रखते हुए फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको सपोर्ट होगा. बिकॉज फॉर मी ऑल्सो आई विल टेल यू, यस आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स सम के जो मेरे दिमाग में प्ले करते हैं. जैसे मैं बहुत लेट रात में नहीं निकलूंगी, क्यों, कि पाकिस्तान में मुझे पता है, मेरे वालिद साहब कहते थे 8 बजे, लेट टू लेट 8 बजे आपने घर के अंदर होना है. 1 मिनट भी, मुझे याद है जब बचपन में 1 मिनट में आई थी लेट, और उस दिन तो मुझे पता है इतना गुस्सा था वालिद साहब का, मतलब माँ भी बहुत गुस्से उन्होंने किया था कि बेटा क्यों. मैंने कहा हम दुआ कर रहे थे, वो जो दुआ कर रहे थे वो तो पता नहीं कहीं और ही लेकर गया हमें, तो 2-3 मिनट ज्यादा लगे. उन्होंने कहा नहीं बेटा, बुरी बात है, आप एक लड़की जात हो, ये अच्छा नहीं है कि आप घर के बाहर हो रात में, आपको घर आना पड़ेगा और ये टाइम है आपका, और ये आपकी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. अभी तक वो ही खौफ, डर, वो चीज मेरे अंदर है. सो आई विल नॉट ब्रेक द culture, the family values that I have. And adding to this, I hope I've answered everything of yours. I would like to throw my topic rolling into Ma'am Nabila. Ma'am Nabila, जो भी जैसे मैंने शेयर किया है about this, could you highlight that what in what way does thoughts, हमारी सोच affects our body?
एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो हम काम करते घर में, ऑफिस में या कोई भी चीज, किस तरीके से हमारी जो सोच है वो अफेक्ट करती है? क्वेश्चन। क्योंकि टाइम भी शॉर्ट हमारा रह गया, तो मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करती हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, यही बात है कि मैंने यही स्टार्ट में कहा था कि हम लोग कंप्लेनिंग पे बात नहीं करते, हम लोग सोल्यूशन पे बात करते हैं। और अगर आप ये लोग कहते हैं महंगाई महंगाई पैसा पैसा, तो वो आपका प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच उसको बड़ा बना रही है। तो अगर आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करेंगे और ये सोचेंगे कि हमने कुछ कोई इसका सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ हमने खुद अर्निंग करनी है। औरतें अगर ये सोचे कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ढूंढे या कोई भी ऐसा काम ढूंढे, हमारा पर्पस ये नहीं है कि औरतें मतलब घर से बाहर निकल जाए और घर को डिस्टर्ब करें, नॉट एट ऑल, बल्कि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। और ये उनकी बॉडी पे भी इफेक्ट करेगा जब उनके दिमाग में ये चीज चल रही होगी ना। और जैसे ही वो उसकी एनर्जी इस चीज को वाइब्रेट करती है या पॉजिटिव एनर्जी में, हाई एनर्जी में होती है, अच्छी चीज सोच रही होती है, एक होपफुल में कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। अब हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम जो है कुछ औरतों के दिल में ख्वाहिश हो और वो उनको ये क्लिक किया। आपने देखा होगा कि हम कभी सोच रहे होते हैं कोई चीज हमें मिल जाती है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उससे हाई होती है और वो फ्रीक्वेंसी उस चीज के साथ मैच कर रही होती है। तो इसी तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी जब हम हाई करेंगे, अपनी सोच को भी हाई करेंगे और पॉजिटिव और होपफुल वे में सोचेंगे, तो वही चीजें हमारी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं। और वाकई ये होते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत, प्रैक्टिस और इन चीजों की जरूरत होती है। उसको हम बाकी डिटेल जो है वो आई थिंक कल इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम इज आई थिंक शॉर्ट और क्वेश्चन आंसर यस, टाइम फॉर द Q&A फॉर टुडे। जी बिल्कुल। तो would you like to read the I don't see actually any questions, मैम नबीला। वालेकुम सलाम सबको जिसने भी सलाम किया है हम दोनों से और आम इंसान पार्टी की तरफ से। और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया है। थैंक यू नौहीद अरशद फॉर सेइंग ग्रेट वर्क, वी अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। जी खलील रहमान साहब ने सही कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एंड जी शहाना सिद्दीकी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। नाहीद के भी, अरशद भी बहुत एक्टिव है, वो भी कह रही नाइस डिस्कशन। फिर हम जी, तो अगर सवाल हो, इट्स नॉट ओनली कि औरतें सवाल पूछ सकती हैं कि ये औरत, मर्द भी अगर आप अपने लेडीज के लिए कोई सवाल पूछने चाह रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस क्वेश्चंस। कल भी हम दोबारा आएंगे इसी टाइम पे, पाकिस्तान के 4 से 5 बजे तक, और मेंटल हेल्थ पे मजीद गुफ्तगू होगी। तो अगर आप तब भी क्वेश्चंस हैं तो तब भी आप प्लीज। थैंक यू शहाना सिद्दीकी फॉर वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वी अप्रिशिएट यू। ये हो नहीं सकता अगर आप हम और बाकी अमेजिंग मर्द और खवातीन ना होते इस ऑडियंस में। सो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मैम नबीला, कोई सवाल अभी तक आया नहीं है? किसी ने कुछ सवाल पूछना है कमेंट्स में जरा टाइप कीजिएगा, वी आर हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू कंक्लूड। वही बात है, कल हम थोड़ा इस पे और फर्दर डिटेल में मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करेंगे, बट साथ हम इसमें कुछ और सॉल्यूशंस या जो भी इसकी आगे फर्दर लोग कैसे इसको कर सकते हैं, या कुछ लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं लेडीज के हम कुछ करना चाहते हैं पर हम स्ट्रक हो जाते हैं। तो जो भी है अगर यहाँ पे मौजूद है या बाद में इस वीडियो को देखें या किसी तरीके से कनेक्शन हो उनका, तो वो जरूर ज्वाइन करें। हो सकता है उनको यहाँ से कोई फायदा मंद चीज मिल जाए। वही बात है कि आपकी अपनी सोच की बात है कि आपकी सोच कहाँ जाती है। हमारी सोच ही हमें हर जगह पे लेके जाती है, क्योंकि सबने ये सुना होगा एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। जहाँ पे हम फोकस करेंगे हमारी एनर्जी वहीं फ्लो होगी। तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सो ट्रू, बहुत सही आपने कहा। और ये भी मैं ऐड करती जाऊं कि कल का जो टॉपिक, यस इट विल बी ऑन वुमेन्स मेंटल हेल्थ, बल्कि हम मजीद उसमें डीप डाइव करेंगे। तो इवन अगर आप रिप्ले में वॉच कर रहे हैं, प्लीज कमेंट्स छोड़िएगा हमारे लिए, बिकॉज वी विल चेक। और जहां पे हम हाईलाइट कुछ कर सकेंगे, जो अभी आप लोग ने सवाल पूछा है या कमेंट्स, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट कल के इवेंट में, ताकि वो, और जितना आप हम लोगों को इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इट शुड नॉट बी कि सिर्फ 2 दिन का इवेंट है, हम लाजिम जारी रखेंगे
اس کے ساتھ، اور ہم دعوت دیتے اور عورتوں کو بھی کہ بھائی آئیں عام انسان پارٹی میں جوائن کریں، اور اسی لیے ہم لوگوں نے یہ نام دیا ہے عام انسان پارٹی کے. عام انسان یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے اسپیشل پولیٹیشین یا آپ کو یو ہیو ٹو بی اے اسپیشل ایکسپرٹیز ان سم تھنگ. ایک عام انسان، be an ordinary normal man and come let's support. اور پاکستان یہ کہہ کر کہ جیسے میم نبیلہ نے کہا کہ چیزیں مہنگائی اتنی ہے، ہم وی آر آلویز کمپلیننگ مہنگائی اتنا ہے، میں کیا کروں، ہماری انٹرنیٹ ویک ہے، میں نہیں بول سکتی. ابھی I'm telling you I struggle because I'm always speaking in English. نہیں کہ میں پاکستان میں پلی ہوں، بلکہ جب زنگ تو لگ ہی جاتا ہے جب بندہ ایک زبان میں نہیں بولتا ہے، تو مجھے زنگ لگ گئی ہے. ابھی یہ میم نبیلہ نے تھوڑا سا زنگ ہٹا دیا میرے، تو میں نے اردو میں بات کر لی آج. تو یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کرتی ہیں تو مطلب ہم بہت کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. پلیز لیٹس اسٹاپ کہ ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں، آلویز ٹاکنگ کہ بھائی ہمارے منسٹرز ایسے ہیں، ہمارے جو ہیڈز ہیں ایسے ہیں ویسے. یاد رکھنا جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہو کسی اور کی طرف، 4 آپ کی طرف ہوتی ہے. تو 4 انگلیوں سے پوچھو کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اپنے پاکستان کے لیے، کیا میں اس کو چینج کر سکتی ہوں، اور آگے کیسے اس کو امپروو کر سکتے. تو ہماری صرف ویمنز ونگ نہیں ہے عام انسان پارٹی میں، مرد بھی حضرات ہیں جو ہم نے اصل میں اس وقت مے بی وی ول انوائٹ کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہے مسٹر راجہ ارشد کے وہ پلیز اسکرین پہ آئے. اینڈ آئی ول آلسو ہم دعوت دیں گے خلیل الرحمان صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہے، پلیز آپ سامنے آئیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ مرد حضرات بھی ہے ہمارے جو عام انسان پارٹی میں. بہت اچھا رہے گا. پلیز کم آن اسکرین مسٹر راجہ ارشد جی. یہ ہے ہمارے چیئرمین صاحب، اور خلیل الرحمان صاحب اگر ہیں تو ان کو بھی پلیز لے آئیے گا. تو کین یو سے سم تھنگ ذرا قوم سے خطاب پلیز راجہ صاحب اور پھر خلیل صاحب. جی السلام علیکم ناظرین. میں ہوں راجہ پاکستانی اور عام انسان کو ریپریزینٹ کرتا ہوں. میں خود بھی عام انسان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان میرے سے بہتر ہیں، علم میں بھی، تجربے میں بھی، عقل میں بھی، فہم و فراست میں بھی. اور عام انسان کو پروموٹ کرتا ہوں، عام انسان کی جو پرابلمز ہیں انہیں سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کا عام انسان پارلیمنٹ میں نظر آئے. یہ ایک معصوم سی خواہش دل میں لیے میں سیاست کرتا ہوں. اور جمہوریت یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو جمہوریت میں تو ہر طبقہ اگر نمائندگی اس کی نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو وہ جمہوریت فیک جمہوریت ہے، وہ جعلی ہے. اور ہمیں پاکستان کے لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ایک ریڑھی والا پارلیمنٹ کا ممبر بن سکے، ایک کسان پارلیمنٹ کا ممبر بن سکے، ایک خاتون خانہ جو ہے اگر اس کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہے تو بھی وہ پارلیمنٹ کی ممبر بن سکے. کیونکہ ہمارے ہاں کروڑوں خواتین ایسی ہیں جن کی ایجوکیشن نہیں ہے، تو کیا ان کی نمائندگی ایوان میں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. تو وہ لوگ جو اپنی زبان نہیں رکھتے، جو بول نہیں پاتے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو ڈسپلے نہیں کر سکتے پولیٹیکل سینیریو میں، عام انسان پارٹی انہی کو ریپریزنٹ کرتی ہے، یہ انہی کی پارٹی ہے. آپ آئیے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کو ٹریننگ دیں گے، تربیت دیں گے، شعور دیں گے، کام کرنے کا طریقہ بتائیں گے، آگے بڑھنے کی امنگ دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کے عام لوگ پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے. میں ویمن ونگ کا شکر گزار ہوں جس میں خاص طور پر پریزیڈنٹ ہماری میڈم ڈیفنی سورس ہیں، اور آج کے اس شو کے لیے، اور ہماری شیڈو منسٹر مینٹل ہیلتھ نبیلہ پراچا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہترین شو کو عام انسان پارٹی کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا، اور لوگوں کو، ہماری خواتین کو خاص طور پر آپ
बेहतर बनाने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनको बिजनेस में लाने के लिए, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए और उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पे बात करने के लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू खलीलुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन आम इंसान पार्टी राजा रशीद महमूद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच मैम डेफनी प्रेसिडेंट वुमेन विंग आम इंसान पार्टी, and Ma'am Dr. Nabila Pracha, Shadow Minister for Mental Health, a great psychologist. Thank you very much for this wonderful program. I appreciate you and welcome you. कि मुझे खुशी हुई कि आप जो है वो आपने वक़्त दिया, अपना कीमती वक़्त में से मुझे मैं जो है वो इसका जो है वो शुक्रगुजार होऊंगा आपका कि आप आइंदा भी जो है वो हमारे इस सेशन का हिस्सा बने। आप वक्तन फ़वक्तन आप इसके लिए वक़्त निकालें। इस तरह इंशाल्लाह अब ये आज का ये इस नौयत का पहला प्रोग्राम था, तो जब इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वक्तन फ़वक्तन होंगे तो हमारी ऑडियंस भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह लेडीज़ भी कनेक्ट होंगी, क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक यू अगेन for your wonderful precious time, Ma'am Daphne. Thank you very much. You're welcome. बहुत बहुत शुक्रिया ये मौके का, एंड इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे 4 बजे पाकिस्तान टाइम। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स सबको लेकर आए, प्लीज फील फ्री टू शेयर, कि इसको भी आप शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे जिसके साथ आपने शेयर करना है। देयर इज नो लिमिटेशन। जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो पाकिस्तान के बाहर भी रह रहे हैं, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना है आपने राजा साहब? बहुत शुक्रिया जी। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने अप्रिशिएट किया, जिन्होंने प्रोग्राम को देखा। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और इंशाल्लाह हम ये शो करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो कल भी 4 से 5 बजे तक होगा। आप अपने क्वेश्चंस मेंटल हेल्थ के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमें लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में, या फोन नंबर भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मिलके पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।